آج افطاری میں کیا بنے گا؟ اس نے امید بھری نظروں سے ماں کو دیکھا جو چولہے کے پاس بیٹھی تھی، جہاں ایک پرانی دیگچی میں صرف پانی گھول رہا تھا۔ سلما نے ایک نظر اپنی بیٹی کے چمکتے چہرے پر ڈالی، جس پر بھوک اور معصومیت دونوں ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ نور کی آنکھیں روبینہ کے گھر میں سجنے والے افطار کے کھانے دیکھ چکی ہیں۔ بیٹا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور اللہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ آج ہمارے نصیب میں جو ہوگا وہی ملے گا، سلما نے پیار سے کہا، مگر نور نے ضد پکڑ لی۔ پر اماں، مالکن کے ہاں تو بہت کچھ بن رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بانٹتے؟ ہم بھی تو بھوکے ہیں۔ نور کی آنکھوں میں سوال تھا۔ سلما نے اپنا ضبط برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی ان خوابوں کا شکار ہو جائے جو حقیقت میں کبھی پورے نہیں ہوتے۔ بیٹا، ہمیں جو ملے ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ زیادہ کی خواہش انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ نور خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں خواہش کی چنگاری بجھ نہ سکی۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن روبینہ بیگم کے شاندار بنگلے میں روشنیوں کی چمک تھی۔ ڈرائنگ روم میں افطار کی خوشبو اب بھی باقی تھی اور خادمائیں بچہ کچا کھانا سمیٹ رہی تھی۔ نور نے دور سے دیکھا کہ میز پر ابھی بھی کئی چیزیں بچی ہوئی تھیں، کھجوریں، سموسے، فروٹ چاٹ اور کچھ میٹھے پکوان۔ سلما برتن دھونے میں مصروف تھی اور نور اس کے قریب ہی بیٹھی تھی، مگر اس کا دل کسی اور خیال میں الجھا ہوا تھا۔ بھوک کے ساتھ ساتھ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے ماں سے ضد کی تھی، مگر ماں کے پاس دینے کے لیے نہ کھانے کے الفاظ تھے نہ تسلی۔ نور نے ادھر ادھر دیکھا، سب لوگ مصروف تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ آئی، لیکن پھر جیسے کوئی اور طاقت اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی ہو، اس نے جھپٹ کر میز پر سے ایک کھجور اٹھا لی اور ساتھ میں ایک پلیٹ سے 2 سموسے بھی اپنی شلوار میں چھپا لیے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً باہر باغ کی طرف بھاگی جہاں روشنی ذرا مدھم تھی۔ اس نے ایک بڑے درخت کے پیچھے جا کر جلدی سے کھجور منہ میں رکھی۔ جیسے ہی میٹھے ذائقے نے اس کی زبان کو چھوا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے سموسا نکالا اور کھانے لگی، لیکن ابھی پہلا ہی نوالا توڑا تھا کہ اچانک ایک کرخت آواز اس کے کانوں میں گونجی، چور! نور کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو روبینہ بیگم غصے سے آگ بگولا اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نفرت اور حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری اصلیت، ہمارے گھر میں آ کر چوری کرتی ہو؟ روبینہ کی چیخ سن کر کچھ اور لوگ بھی باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ نور کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے منہ میں رکھا نوالا اچانک زہر لگنے لگا۔ نہیں، میں نے بس، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ روبینہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہی ہوتے ہیں غریب لوگ، بھوکے ننگے، ہاتھ لگانے کو کچھ نہیں ہوتا تو دوسروں کی چیزیں چرا کر کھاتے ہیں۔ وہ طیش میں آ کر بولی۔ اتنے میں عارف صاحب بھی وہاں آ گئے۔ وہ نور کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ روبینہ، تم بہت سختی کر رہی ہو، ایک کھجور اور 2 سموسے تو لیے ہیں، آخر یہ کوئی بڑی چوری تو نہیں؟ روبینہ نے طنزیہ ہنسی ہنسی، ہاں کیوں نہیں، تمہیں کیا پتا کہ چور کیسے ہوتے ہیں؟ یہ غریب ہمیشہ چور ہی ہوتے ہیں، موقع ملے تو ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے جائیں۔ نور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں بہنے نہ دیا۔ سلما بھی ہجوم میں آ چکی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے نور کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے بنگلے سے باہر لے آئی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ ہمیں ذلیل کروا دیا۔ سلما کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں غصہ زیادہ تھا۔ نور نے روتے ہوئے کہا، اماں، میں نے بس تھوڑا سا کھانا لیا تھا، میں بھوکی تھی۔ چپ کر، سلما نے زور سے کہا اور اپنی بیٹی کو جھنجھوڑا۔ اب ہمیں دال روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی، کل کو وہ نوکری سے بھی نکال دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ بھوک تو تجھے تب بھی لگے گی جب کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید غریب ہونا واقعی ایک جرم ہے۔ نور ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی، اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا غلط کیا تھا؟ کیا بھوک کا احساس صرف غریبوں کو ہوتا ہے؟ کیا اچھے کھانے پر صرف امیروں کا حق ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ کمرے کی چھت پر لگے پرانے پنکھے کی چرچراہٹ کے علاوہ مکمل خاموشی تھی۔ نور نے آہستہ آواز میں کہا، اللہ میاں، کیا امیر اور غریب کا رب ایک نہیں ہے؟
मैं भी रोजा रखती हूँ, फिर मुझे अच्छा खाना क्यों नहीं मिलता। उसका दिल दुख से बोझल हो चुका था। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद किया और सर घुटनों पर टिका लिया। वो कभी अपने छोटे से घर को देखती, कभी अपनी माँ को जो थकन से चूर जमीन पर लेटी थी। सलमा की सांसें बेतरतीब थीं, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बोझ तले दबी जा रही हो। या अल्लाह, हम इतने मजबूर क्यों हैं? नूर ने एक और सवाल आसमान की तरफ उछाल दिया, मगर उसे कोई जवाब न मिला। रात का दूसरा पहर था। सलमा की आंख अचानक खुल गई। उसके दिल में बेचैनी थी, एक घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो आहिस्ता से उठी, कमरे के एक कोने में जा बैठी और सर झुकाकर रोने लगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, मैं बहुत बेबस हूँ। उसके आंसू बहने लगे। या अल्लाह, अगर मैं चोर होती तो शायद आज मेरी बच्ची को भी खाने के लिए तरसना ना पड़ता, मगर मैंने हमेशा हलाल खाने की कोशिश की, फिर भी मेरी बच्ची को लोगों के ताने सुनने पड़े। मैं क्या करूं? सलमा की सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं, मगर नूर सो चुकी थी या शायद वो जाग रही थी, मगर अपनी माँ को रोते देखकर खामोशी अख्तियार कर ली थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सलमा और नूर अभी बेदार ही हुई थीं कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सलमा ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने रुबीना का एक नौकर खड़ा था। बेगम साहिबा ने कहा है कि आज से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। सलमा के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या? मगर क्यों? ये हम नहीं जानते। बस बेगम साहिबा ने कह दिया है कि आज से काम पर ना आना। और हाँ, तुम्हारी जगह नई नौकरानी आ चुकी है। ये सुनकर सलमा का दिल डूबने लगा। उसके लिए ये नौकरी ही सब कुछ थी। घर का किराया, नूर की फीस, खाने पीने का खर्च, ये सब कुछ इसी मामूली तनख्वाह से चलता था। उसने खामोशी से दरवाजा बंद किया और दीवार के साथ लगकर बैठ गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। नूर ने ये सब देखा तो उसके दिल में शदीद गुस्सा आया। ये सब मेरी वजह से हुआ ना अम्मा? वो तल्खी से बोली। सलमा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज उसके हलक में अटक गए। नूर ने मुट्ठी सख्ती से बंद कर ली। हमेशा गरीब ही क्यों कुर्बानी देते हैं? कुछ दिन बाद रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। रुबीना बेगम के घर में एक खास चहल पहल थी। खादमाएं खूबसूरत डब्बे सजा रही थी, जिनमें खजूरें, बिरयानी के डिब्बे, समोसे, पकोड़े और दीगर लवाजमात रखे जा रहे थे। आज रुबीना बड़े फख्र से पूरे मोहल्ले में शानदार अफ्तारी तकसीम करने जा रही थी। शहर में एक बड़ा सा मेज रखा गया था, जिस पर सैकड़ों खाने के पैकेट तरतीब से रखे गए थे। रुबीना मेहमानों के दरमियान बैठी थी और उसके चेहरे पर गरूर भरी मुस्कुराहट थी। माशा अल्लाह बेगम साहिबा, आपकी सखावत का कोई जवाब नहीं। एक पड़ोसन ने खुशामद भरे लहजे में कहा। हाँ भाई, रमजान में तो सवाब कमाना चाहिए। जो भी आए सबको खिला देना है। रुबीना ने खुश होकर कहा और मुलाजमा को इशारा किया कि इफ्तार के पैकेट तकसीम करना शुरू करे। उसी लम्हे आरिफ कमरे से बाहर आया और ये सब देखकर मुस्कुरा दिया, मगर उसकी मुस्कुराहट में हल्का सा तंज था। वो खामोशी से एक कुर्सी खींचकर रुबीना के करीब आकर बैठ गया और हल्की आवाज में बोला, बहुत खूब। जिस बच्ची के हाथ से एक समोसा छीन लिया था, अब पूरे मोहल्ले को खिला रही हो। रुबीना, जो अभी तक खुद को नेकी का फरिश्ता समझ रही थी, एकदम चौंक गई। क्या मतलब? उसने नागवारी से कहा। आरिफ ने गहरी सांस ली। चंद दिन पहले एक मासूम बच्ची ने सिर्फ एक खजूर और 2 समोसे लिए थे। तुमने उसे चोर कहकर घर से निकाल दिया और आज तुम इतनी फराख दिल कैसे बनकर पूरे मोहल्ले को अफ्तारी तकसीम कर रही हो? ये कैसी सखावत है? रुबीना के चेहरे पर हल्की सी नागवारी उभरी, मगर वो जल्दी ही खुद पर काबू पाकर पुरसुकून लहजे में बोली, देखो आरिफ, जिसकी जितनी औकात हो उसे उतना ही मिलना चाहिए। वो एक गरीब नौकरानी की बेटी थी, उसे हद में रहना चाहिए था। और ये लोग जिन्हें मैं अफ्तार दे रही हूँ, ये सब इज्जतदार लोग हैं, उनके लिए देना और बात है। आरिफ ने बेयकीनी से उसे देखा। तो मतलब तुम्हारी नेकी भी गरीब और अमीर देखकर होती है? रुबीना ने कंधे झटक दिए। आरिफ, तुम जज्बाती हो रहे हो। असल बात ये है कि दुनिया देखती है कि कौन क्या कर रहा है। जब मैं पूरे मोहल्ले को अफ्तारी करवा रही हूँ, लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरा नाम अच्छे अल्फाज में लेंगे, और उस नौकरानी की बेटी को खिलाकर मुझे क्या मिलता? आरिफ ने मायूसी से सर झटका। शायद तुम्हें वाकई समझ नहीं आएगी। नेकी दिखावे के लिए नहीं की जाती, और खैरात देने का असल हकदार वही होता है जो भूखा हो।
अगर तुमने वही खाना सलमा और नूर को दिया होता तो शायद ये तुम्हारे लिए ज्यादा सवाब का काम होता। रुबीना ने हंसते हुए हाथ झाड़े। अरे छोड़ो, तुम तो फजूल बहस कर रहे हो। आरिफ खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अफसोस था। रुबीना बेगम के आंगन में आज भी रौनक थी। मोहल्ले में इफ्तारी तकसीम करने के बाद भी मुलाजमाएं इधर उधर दौड़ रही थी। कुछ बर्तन समेट रही थी और कुछ मजीद इफ्तार के पैकेट तैयार कर रही थी। अम्मा, मैं भी पैकेट बांटने जाऊंगा। रुबीना का 8 साला बेटा रेहान जिद कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जोश था। वो हमेशा से अपने वालिद आरिफ को पसंद करता था और उनकी बातें ध्यान से सुनता था। आज जब उसने सुना कि आरिफ अम्मी पर तंज कर रहे थे कि वो दिखावे के लिए नेकी कर रही हैं, तो उसके दिल में भी ख्याल आया कि नेकी सिर्फ वही होती है जो दिल से की जाए। रुबीना ने पहले तो इनकार किया। रेहान बेटा, बाहर बहुत रश होता है, तुम घर में रहो, मुलाजिम सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन रेहान जिद में आ गया। नहीं अम्मा, मैं भी जाऊंगा। बाबा ने कहा था कि असल नेकी वही होती है जो हम खुद करें। आरिफ ने मुस्कुराते हुए बेटे का माथा चूमा। ठीक है, इसे जाने दो। मगर मुलाजिम के साथ रुबीना ने नापसंदीदगी से आरिफ को देखा, मगर रेहान की जिद के आगे हार मान ली। अफ्तार का वक्त करीब था। रुबीना मेहमानों के साथ बैठी बातें कर रही थी कि अचानक एक मुलाजिम घबराया हुआ अंदर आया। बेगम साहिबा, रेहान साहब अभी तक वापस नहीं आए। रुबीना का रंग फक हो गया। क्या? वो तो 1 घंटे पहले ही निकल गया था। आरिफ ने फौरन फोन निकाला और मुलाजिम को बुलाया जो उसके साथ गया था, मगर फोन बजता रहा, कोई जवाब नहीं आया। अब घर में कोहराम मच गया था। मुलाजमीन दौड़कर बाहर निकले, मोहल्ले में पूछा, गलियों में तलाश किया, मगर रेहान का कुछ पता ना चला। कहीं वो अगवा तो नहीं हो गया। रुबीना की एक दोस्त ने खदशा जाहिर किया, या अल्लाह, मेरा बेटा। रुबीना के हाथ पैर कांपने लगे। पुलिस को इत्तला दी गई और जल्द ही तफ्तीश शुरू हो गई। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। लोग सरगोशियां कर रहे थे। पुलिस एहलकार सवालात कर रहे थे कि अचानक एक सिपाही ने एक थैली उठाई जो बंगले के करीब पड़ी थी। ये देखें, हमें एक जोड़ा जूते मिला है, सिपाही ने ऐलान किया। रुबीना ने गौर से देखा और हैरत से चीख पड़ी, ये तो रेहान के पुराने जूते हैं। सिपाही ने जूते उठाए और करीब खड़े एक मुलाजिम से पूछा, ये जूते किसके पास थे? मुलाजिम हिचकिचाया, मगर फिर आहिस्ता आवाज में कहा, ये नूर के पास थे। आरिफ साहब ने कुछ दिन पहले ये जूते नूर को दिए थे। रुबीना के चेहरे पर गुस्से और हैरत के आसार नुमाया हो गए। नूर, उसकी नौकरानी की बेटी, सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोहल्ले में पहले ही सरगोशियां होने लगी। कहीं सलमा ने बदला लेने के लिए तो रेहान को अगवा नहीं कर लिया। सलमा अपने छोटे से कमरे में नूर के साथ बैठी थी जब अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, पुलिस है। सलमा घबरा गई। नूर ने खौफ से माँ का हाथ थाम लिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सिपाही अंदर घुस आए। रुबीना और आरिफ भी पीछे थे। रुबीना ने गुस्से से आगे बढ़कर सलमा का बाजू पकड़ा। मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है? सलमा हैरत से पीछे हटी। क्या बेगम साहिबा, आप क्या कह रही हैं? सिपाही ने जूते आगे किए। ये जूते तुम्हारी बेटी के पास थे, तुम्हें ये कहाँ से मिले? नूर ने घबराकर माँ की तरफ देखा, फिर हकलाते हुए बोली, ये तो आरिफ साहब ने दिए थे, मैंने कुछ नहीं किया। रुबीना ने चीखकर कहा, झूठ मत बोलो, तुम दोनों ने मेरे बेटे को अगवा किया है। तुम्हें लगता था कि तुम्हें जलील करने के बाद मैं चैन से रहूंगी, इसलिए बदला लिया ना? सलमा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, मगर चोर नहीं। ये फैसला पुलिस करेगी, सिपाही ने सख्ती से कहा और एक और अफसर को इशारा किया कि सलमा और नूर को अपने साथ ले जाए। नूर की आंखों में खौफ था। वो अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए रो रही थी। अम्मा, हमने कुछ नहीं किया। आरिफ ये सब कुछ देखकर खामोश खड़ा था। उसके दिल में एक अजीब सा वसवसा था। सलमा और नूर के हाथों में हथकड़ियां नहीं थीं, मगर लोगों की नजरों और हालात की जंजीरें उनके वजूद को जकड़ चुकी थीं। पुलिस वैन के अंदर बैठते हुए नूर मुसलसल रो रही थी। अम्मा, हमने कुछ नहीं किया। अल्लाह की कसम, मैंने रेहान को नहीं देखा। नूर की चीखें पुलिस एहलकारों के लिए बेमायनी थीं। सलमा खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो जानती थी कि गुर्बत में सबसे सस्ती चीज इज्जत होती है, और आज उसकी इज्जत मट्टी में मिल चुकी थी। जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्हें सख्त लहजे में कुर्सियों पर बिठा दिया गया।
एक अफसर ने सख्त नजरों से देखते हुए पूछा, सच सच बताओ, रेहान को कहाँ रखा है? नूर ने तड़प कर कहा, हमने कुछ नहीं किया, हम तो घर पर थे। इतने में रूबीना और आरिफ भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। रूबीना का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। ये दोनों झूठ बोल रही हैं, इनकी गुर्बत ने इनसे ये सब करवाया है। इन्हें तब तक बंद रखें जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता। वो धाड़ी। नूर ने रोते हुए आरिफ की तरफ देखा। आरिफ साहब, आप तो जानते हैं कि हम चोर नहीं हैं। आरिफ ने कुछ कहना चाहा, मगर रूबीना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आरिफ, तुम इनके वकील ना बनो, ये लोग काबिले एतबार नहीं होते। कई घंटे गुजर गए। सलमा और नूर एक कोने में बैठी रहीं। खौफ और बेबसी उनके चेहरों से साफ झलक रही थी। इस दौरान आरिफ खामोशी से वकील से बात कर चुका था। वो जानता था कि कोई ठोस सबूत नहीं, सिर्फ शक की बुनियाद पर उन्हें ज्यादा देर कैद नहीं रखा जा सकता। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर अंदर आया और कहा, जमानत हो गई है। नूर के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी झलक आई, मगर रूबीना फौरन बोली, क्या तुम इन्हें छोड़ रहे हो? मेरा बेटा लापता है और तुम इन चोरों को आजाद कर रहे हो। पुलिस ऑफिसर ने संजीदगी से कहा, बेगम साहिबा, इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं, हम इन्हें जेरे हिरासत नहीं रख सकते। तहकीकात जारी है, अगर हमें कोई और सुराग मिला तो हम दोबारा पूछगछ करेंगे। सलमा ने थके हुए लहजे में कहा, अल्लाह का शुक्र है। आरिफ ने नूर के सर पर हाथ रखा। बेटा डरो मत, सच एक न एक दिन सबके सामने आ जाएगा। रूबीना का गुस्सा और बढ़ गया। जैसे ही सलमा और नूर बाहर निकली, उसने तेज लहजे में कहा, मैं जानती हूँ तुम लोग चालाक हो, लेकिन याद रखो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सलमा ने बेबसी से आरिफ की तरफ देखा, फिर नूर का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। रूबीना ने आरिफ की तरफ गुस्से से देखा, तुमने इन्हें बचाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आरिफ ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, रूबीना, कभी कभी हमें अपने दिल से भी सवाल करना चाहिए, क्या हम सच के साथ हैं या जिद के? रूबीना ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में अब भी नफरत की चिंगारियां जल रही थीं। रेहान, जो कभी माँ की गोद में बैठकर बेहतरीन खाने खाता था, अब एक अंधेरी कोठरी में बैठा था। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, चेहरा धूल से अटा हुआ था और आंखों में खौफ के साए थे। वो मुसलसल रोता था, मगर उसके आंसुओं पर किसी को रहम नहीं आ रहा था। चुप कर रोएगा तो खाने को भी नहीं मिलेगा। एक करख्त आवाज ने उसे झिंझोड़ा। रेहान ने सहमकर ऊपर देखा। सामने एक सख्त शक्ल वाला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में रहम का कोई निशान नहीं था। मुझे घर जाना है, रेहान ने सिसकते हुए कहा। आदमी हंसा, घर जाना है, पहले पैसे लेकर आ, आज से तू भीख मांगेगा वरना भूखा मरेगा। रेहान की आंखें हैरत से फैल गईं। भीख नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आदमी ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा, यहाँ तेरे नखरे नहीं चलेंगे, चल बाहर। रेहान को एक पुरानी मैली सी कमीज पहनाकर एक होटल के बाहर छोड़ दिया गया। वहाँ पहले ही कई फकीर बैठे थे, जिनमें कुछ बूढ़े, कुछ माजूर और कुछ छोटे बच्चे थे। वो सब हाथ फैलाकर लोगों से खाने या पैसों की भीख मांग रहे थे। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। वो जिंदगी में पहली बार इस दुनिया को इस नजर से देख रहा था। नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, वो बड़बड़ाया। मगर चंद घंटे बाद जब भूख की शिद्दत बढ़ने लगी तो उसके कदम खुद ब खुद लड़खड़ा गए। एक होटल के बाहर लोग चिकन कढ़ाई और बिरयानी खा रहे थे। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि उसके पेट में मरोड़ उठने लगा। रेहान हिम्मत करके एक टेबल के करीब गया, जहाँ एक अमीर शख्स बैठा खाना खा रहा था। भाई प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दे, उसने कांपती आवाज में कहा। आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसके मैले कुचैले कपड़ों पर नाक चढ़ाई और गुस्से से बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, सारा दिन भिखारी आ जाते हैं। रेहान का दिल टूट गया। मैं भिखारी नहीं हूँ, उसने आहिस्ता से कहा, मगर वो शख्स पहले ही रुख मोड़ चुका था। रेहान दूसरे होटल में गया, मगर वहां भी यही हाल था। कोई उसे घूर कर देखता, कोई गुस्से में डांट देता और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उसे झिड़क कर दूर हटा देते। ये दुनिया गरीबों के लिए कितनी जालिम है, उसके नन्हे दिल ने सोचा।
आखिरकार जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उसने कचरे के ढेर के पास एक ठंडा पड़ा हुआ नान और एक आधा खाया हुआ समोसा देखा। रेहान को घिन आ रही थी, मगर पेट में होने वाली जलन ने उसकी नफरत को पीछे धकेल दिया। उसने कांपते हाथों से नान उठाया और खाने लगा। ये खाना बासी और खराब था, उसका जायका बहुत बुरा था, मगर उस वक्त उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसके पेट में अजीब सा दर्द उठने लगा। ओ मेरा पेट! वो तकलीफ से दोहरा हो गया। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके सामने धुंधलाहट छाने लगी और उसका सर चकराने लगा। वो एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। रेहान बेसुध एक वीरान गली के कोने में पड़ा था। उसका छोटा सा जिस्म सर्दी और कमजोरी से कांप रहा था। भूख और खराब खाने की वजह से उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखें खोलने की कोशिश करता तो सब कुछ धुंधला दिखाई देता, कानों में शोर आता, मगर अल्फाज समझ नहीं आते। दूसरी तरफ अगवाकारों के लिए अब वो एक बोझ बन चुका था। उनका मंसूबा था कि उसे भीख मंगवाने पर मजबूर करें, मगर वो इतना बीमार हो चुका था कि चलना फिरना भी मुश्किल था। एक लंबे तड़ंगे आदमी ने दूसरे से गुस्से में कहा, ये तो मरने वाला है, अगर ये मर गया तो पुलिस भी पीछे पड़ जाएगी। दूसरे आदमी ने कंधे झटक दिए, फिर क्या करें? पहले ने एक पल के लिए सोचा, फिर मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोला, इसे फेंक दो किसी कचरा कुंडी में। कोई मर रहा हो या जी रहा हो, इस दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। चंद लम्हों बाद वो लोग रेहान को एक गंदी बदबूदार कचरा कुंडी में फेंक कर वापिस खामोशी से वहां से गायब हो गए। रेहान ने मध्यम आंखों से इर्द गिर्द देखा। वो गंदगी के ढेर में पड़ा था। यहाँ सब्जियों के सड़े टुकड़े, गले हुए फल, टूटे हुए बर्तन और जाने क्या कुछ बिखरा था। करीबी कुछ आवारा कुत्ते कचरे में मुंह मार रहे थे। रेहान ने हिलने की कोशिश की, मगर जिस्म बिल्कुल बेजान लग रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो कभी एक आलीशान घर का नन्हा शहजादा था और आज जमीन पर बेयारो मददगार पड़ा था। अम्मा, उसके लबों से एक मध्यम सी आवाज निकली, मगर इतनी कमजोर कि हवा में तहलील हो गई। कुछ देर बाद एक फकीर औरत वहां से गुजरी। उसने रेहान की तरफ देखा, फिर बेनियाजी से आगे बढ़ने लगी। ये भी शायद कोई मरने वाला फकीर है, उसने खुद से कहा और चलती बनी। फिर एक नौजवान मोटरसाइकिल पर आया। उसकी नजर रेहान पर पड़ी। वो रुककर थोड़ा करीब आया, मगर जैसे ही रेहान के गंदे कपड़ों और हालत को देखा तो नफरत से मुंह मोड़ लिया। नशा करके पड़ा होगा, वो बड़बड़ाया और वहां से निकल गया। रेहान की सांसें मध्यम होती जा रही थी। वो इस दुनिया में मौजूद होते हुए भी गैर महसूस हो चुका था। कहीं दूर किसी मस्जिद से आजान की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ से आया है और किस हाल में है। रेहान के लापता होने को कई दिन गुजर चुके थे। पुलिस ने जगह जगह तलाश की, मोहल्ले के चप्पे चप्पे में छापे मारे, मगर कोई सुराग ना मिला। वक्त गुजरता गया और हर गुजरते लम्हे के साथ रूबीना की बेकरारी बढ़ती गई। पहले तो वो गुस्से में थी और हर एक को इल्जाम ठहरा रही थी, कभी सलमा और नूर, कभी पुलिस, कभी अपने मुलाजिम, मगर अब उसका दिल भी जवाब दे चुका था। पहले दिनों में जब भी कोई दरवाजा खटखटाता वो दीवानों की तरह भागती, शायद कोई खबर हो, शायद रेहान वापस आ गया हो, मगर हर बार मायूसी हाथ आती। रफ्ता रफ्ता रूबीना का दिमाग सुन होने लगा, उसका खाना पीना छूट गया। वो बस चुपचाप बैठी रहती, आंखें दरवाजे पर जमाए, जैसे रेहान अभी दौड़ता हुआ अंदर आएगा और कहेगा, अम्मा मैं वापिस आ गया। एक रात जब पूरा घर नींद में था, रूबीना खामोशी से उठी और जाए नमाज बिछाकर बैठ गई। या अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ है? उसके लब कांप रहे थे। मैं तो उसे हमेशा सबसे अच्छा खिलाती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी। कहीं वो भूखा तो नहीं, कहीं सर्दी से ठिठुर तो नहीं रहा, कहीं वो किसी जालिम हाथ में तो नहीं। उसकी हिचकियां बंद गईं। मैं माँ हूँ, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। या अल्लाह, तू तो हर जगह है, तू सब कुछ देख रहा है। मेरे बेटे को मुझसे मत छीन। उसका गुरूर, उसकी अना, सब जमीन बोस हो चुके थे। वो जो कल तक गरीबों को हिकारत से देखती थी, आज खुद जमीन पर सजदा रेज होकर अपने रब के सामने रो रही थी। या अल्लाह, तू नूर की दुआएं सुन सकता है तो मेरी भी सुन ले। अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती की हो तो मुझे सजा दे, मगर मेरे बेटे को मुझसे मत छीन। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे, मगर उस रात भी उसे कोई जवाब न मिला।
रेहान के लापता होने को 1 हफ्ता गुजर चुका था। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। मोहल्ले में भी सरगोशियां कम हो गई थीं। लोगों की जिंदगी वापस मामूल पर आ रही थी, मगर रूबीना के लिए हर दिन अजाब बन चुका था। वो दिन भर इधर उधर भागती, किसी पीर फकीर के पास जाती, किसी पुलिस वाले के पैरों में गिरने को तैयार हो जाती, मगर उसका बेटा कहीं नहीं था। आखिरकार जब दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो गई तो एक आखिरी रास्ता रह गया, वो रास्ता जिसे वो हमेशा कमतर समझती आई थी। उस शाम रूबीना दुपट्टे का किनारा उंगलियों में मसलती, नजरें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता सलमा के घर की तरफ बढ़ी। उसके कदम बोझल थे, जैसे हर कदम के साथ उसका गरूर टूट रहा हो। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्की सी दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और सलमा सामने आ गई। रूबीना की नजरें जमीन पर जमी रही। मैं रुककर बोली, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। सलमा की आंखों में हैरत उभरी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। रूबीना ने लरजती आवाज में कहा, मेरे बेटे के लिए दुआ करो सलमा, शायद तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं। सलमा का दिल एक लम्हे के लिए कांप गया। ये वही रूबीना थी जिसने चंद दिन पहले उसे चोर और बेईमान कहा था, जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी, जिसने उसकी इज्जत को मट्टी में मिला दिया था। आज वही औरत दरवाजे पर खड़ी इल्तिजा कर रही थी। नूर कमरे के अंदर थी, मगर माँ की खामोशी देखकर वो भी दरवाजे पर आ गई। रूबीना को यूं बेबस देखकर उसका मासूम दिल पिघल गया। अम्मी दुआ करें, नूर आहिस्ता से बोली। सलमा ने चौंक कर अपनी बेटी की तरफ देखा। क्या नूर ने एक बार फिर इल्तिजा की? अम्मी दुआ करें, शायद अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। सलमा हैरत में पड़ गई। जो हमें जालिम समझता था आज हमारे पास मदद मांगने आया है, उसने सख्त लहजे में कहा। रूबीना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं गरूर में थी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मगर एक माँ से ज्यादा मजबूर कोई नहीं होता। सलमा, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दुआओं में असर है। ये कहते हुए वो जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ जुड़े हुए थे। अल्लाह के लिए सलमा दुआ कर दो। सलमा की आंखें भीग गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे रूबीना पर तरस आया। नूर की छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी माँ का दिल भी नरम होने लगा। या अल्लाह, तू ही सबका निगहबान है। सलमा ने धीरे से आंखें बंद कर ली और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। नूर की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और हाथ दुआ के लिए उठे थे। या अल्लाह, वो भी बच्चा है, वो भी भूखा होगा, कहीं वो रो ना रहा हो, कहीं उसके पास कुछ ना हो जैसे मेरे पास कुछ नहीं था। नूर की सिसकियां तेज हो गईं। सलमा दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी और बेयकीनी थी। ये वही नूर थी जिसे दुनिया की तलखियों ने जल्द बड़ा कर दिया था, मगर उसका दिल आज भी साफ और नरम था। रूबीना भी दम बखुद नूर को देख रही थी। उसी वक्त शहर के एक सुनसान इलाके में एक पुलिस मोबाइल गश्त पर गई। अचानक गाड़ी के अंदर मौजूद एक सिपाही ने सड़क के किनारे कुछ देखा। कचरे के ढेर पर एक छोटा सा वजूद बेहिस्सो हरकत पड़ा था। रुको, कोई बच्चा है। ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगाई और 3 सिपाही गाड़ी से बाहर निकल आए। उन्होंने करीब जाकर देखा, एक दुबला पतला मैले कपड़ों में मलबूस बच्चा, जिसका चेहरा मिट्टी से भरा था। उसकी सांस बहुत कमजोर थी, जिस्म ठंडा हो रहा था। एक सिपाही ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली और हैरत से चीख पड़ा, ये तो रेहान है, वो ही बच्चा जिसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज थी। फौरन ही वायरलेस पर पैगाम नशर किया कि लापता बच्चा मिल गया है, फौरन एम्बुलेंस भेजी जाए। उधर सलमा और रूबीना दरवाजे पर खड़ी थीं। जब अचानक रूबीना का फोन बजा, वो घबराकर फौरन फोन पर लपकी। बेगम साहिबा, रेहान मिल गया है। दूसरी तरफ से पुलिस ऑफिसर की आवाज आई। रूबीना का जिस्म कांप गया। क्या, कहाँ, कैसा है वो? हमें वो कचरे के ढेर में बेहोशी की हालत में मिला, अभी अस्पताल ले जा रहे हैं, आप फौरन आ जाइए। रूबीना के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने बेअख्तियार सलमा का हाथ पकड़ा। मेरा बेटा मिल गया सलमा, मेरा रेहान मिल गया। नूर ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, क्या अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली? सलमा की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि ये नूर के मासूम दिल की पुकार थी जो सीधा आसमान तक पहुंच गई। रूबीना के आंसू बह रहे थे, मगर आज वो गरूर या अना के नहीं, एक माँ के आंसू थे। वो बेपनाह शुक्रगुजारी और खुशी से निकल रहे थे।
एम्बुलेंस के सायरन की आवाज पूरे अस्पताल में गूंजी। नर्सें और डॉक्टर पहले से तैयार खड़े थे। जैसे ही दरवाजा खुला, 2 वार्ड बॉयज ने स्ट्रेचर को तेजी से अंदर धकेल दिया। स्ट्रेचर पर एक छोटा सा कमजोर सा जिस्म बेजान पड़ा था। रेहान, रुबीना दीवानों की तरह एम्बुलेंस के पीछे भाग रहे थे। उनकी सांसें फूली हुई थी, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा बेटा रेहान, वो चीख रही थी, मगर कोई उसकी बात सुनने की हालत में नहीं था। डॉक्टर तेजी से रेहान को इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। रूबीना बाहर बेबसी से दरवाजे को तकती रही। उसके हाथ लरस रहे थे। आरिफ ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर वो किसी चीज को महसूस करने के काबिल नहीं थी। वक्त जैसे रुक सा गया था। घंटों बाद एक डॉक्टर बाहर आया। अभी कुछ नहीं कह सकते, बच्चा बहुत कमजोर है, जिस्म में ग़िज़ायत की शदीद कमी है और शायद खराब खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो गई है। हमें इंतजार करना होगा कि वो कब होश में आता है। रूबीना ने घबराकर पूछा, वो ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने हमदर्दी से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस दुआ करें। ये सुनकर रूबीना की हिम्मत जैसे टूट गई। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। ये वही औरत थी जो दुनिया को अमीर और गरीब में बांटती थी, जो समझती थी कि जो जितना बड़ा है वो उतना ही कीमती है। मगर आज उसे एहसास हो रहा था कि जिंदगी की सबसे कीमती चीज सिर्फ एक माँ की दुआ होती है। वो रात रूबीना के लिए कयामत की रात थी। अस्पताल के बेरौनक कमरे में वो अपने बेटे के बेहोश जिस्म को देखती रही। रेहान बेटा, उठ जाओ, तुम्हें पता है मैंने आज तुम्हारी सबसे पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए नए खिलौने भी खरीदे हैं, बस आंखें खोलो बेटा। मगर रेहान खामोश था। वो जो हमेशा जिद करता था, शोर मचाता था, आज बिल्कुल खामोश था। रूबीना ने आहिस्ता से उसके सर्द हाथों को अपने हाथ में लिया। पहली बार बेअख्तियार सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मैं हार गई। मैंने हमेशा खुद को बड़ा समझा, दूसरों को नीचा समझा, मगर आज तूने मुझे बता दिया कि असल ताकत तेरे हाथ में है। या अल्लाह, मेरी माँ की ममता को उसके बेटे से जुदा ना कर। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बस मेरा बेटा मुझे वापस दे दे। आंसू जमीन पर गिर रहे थे, दुआएं अर्श तक जा रही थीं, मगर रेहान अब भी खामोश था। रेहान की आंखों पर भारी पलकें लरजी। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। रूबीना की आंखों से आंसू बह निकले। रेहान बेटा, तुम्हें होश आ गया। उसने फौरन झुककर अपने बेटे को सीने से लगा लिया, जैसे वो दोबारा कहीं खो ना जाए। रेहान भी ज़ारो कतार रोने लगा। उसके कमजोर हाथ माँ के गले में सख्ती से लिपटे हुए थे। अम्मी, मैं बहुत भूखा था, वो सिसकने लगा। रूबीना ने घबरा कर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया। बेटा, मैं जानती हूँ, बस अब सब ठीक हो जाएगा। मगर रेहान का रोना नहीं रुक रहा था। अम्मी, मैंने सबसे खाने के लिए मांगा, मगर सबने मुझे धुतकार दिया। किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया। सबने मुझे गंदा नापाक समझकर भगा दिया। ये सुनते ही रूबीना के दिमाग में एक बिजली सी गूंज गई। रेहान के अल्फाज उसके दिल पर चोट कर रहे थे। सबने मुझे धुतकार दिया। अचानक एक पुराना मंजर उसकी नजरों के सामने आ गया। नूर का सहमा हुआ चेहरा, उसके हाथ में वो समोसे जो वो चुपके से खा रही थी, और फिर रूबीना की गुस्सीली आवाज, चोर, गरीब हमेशा चोर ही होते हैं। इतने में उसे वो दिन याद आ गया जब उसने नूर को सबके सामने जलील किया था, सिर्फ इसलिए कि उसने भूख की शिद्दत में एक मामूली सा निवाला चुराने की कोशिश की थी। ये सोचते ही रूबीना के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, मैं कितनी जालिम थी। रूबीना ने रेहान की पेशानी चूमी और उसे नरमी से तसल्ली दी। बेटा, अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मगर दिल में एक और एहसास सर उठा रहा था। क्या मैंने दूसरों को भूखा रखा? क्या मैंने दूसरों को उनकी औकात के मुताबिक इज्जत दी और हक के मुताबिक नहीं? रेहान नींद में डूबने लगा, मगर रूबीना का जहन जाग चुका था। मुझे नूर से माफी मांगनी होगी, सलमा से भी। मुझे अपने रवैये को बदलना होगा। ये पहली बार था जब रूबीना को एहसास हो रहा था कि गुर्बत कोई जुर्म नहीं होती, भूख सबको यकसां लगती है और इज्जत सबका हक होती है। रेहान की सांसें अब मामूल पर आ चुकी थीं, मगर रूबीना के दिल में एक तूफान बरपा था। रूबीना के दिल में निदामत तो थी, मगर जुबान पर इतराफ के अल्फाज नहीं आ रहे थे। रात को जब सब अस्पताल से वापस आए तो आरिफ खामोशी से रूबीना के करीब आ बैठा।
रेहान को होश आ गया। ये सब सुनकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसने नरमी से पूछा। रूबीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। आरिफ ने आह भरी, देखो रूबीना, अगर तुम नूर को अवतार में कुछ दे देती तो भी अल्लाह तुम्हें दे देता, मगर तुमने आजमाइश को खुद दावत दी। रूबीना चौंक गई। अल्लाह ने तुम्हें आजमाया क्योंकि तुमने किसी भूखे को खाने से महरूम किया था। तुम्हारे अपने बेटे को भी वो ही तकलीफ दी ताकि तुम्हें एहसास हो कि भूख क्या होती है। रूबीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसका गुरूर अब भी उसे सच मानने नहीं दे रहा था। क्या मैं वाकई गलत थी? वो खुद से सवाल करने लगी, मगर जवाब उसके अंदर ही कहीं दब गया था। ये एहसास अब एक बोझ बन चुका था। उस दिन शाम के वक्त आखिरकार उसने हिम्मत कर ली और सलमा के घर की तरफ चल पड़ी। ये वही दरवाजा था जहाँ चंद दिन पहले वो गरूर के साथ आई थी, इल्जाम लगाने, बेइज्जत करने, अपनी दौलत का रौब जमाने। मगर आज वो झुकी हुई थी, खाली हाथ थे, दिल में शर्मिंदगी थी। दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद सलमा ने दरवाजा खोला और रूबीना को देखकर हैरान रह गई। बेगम साहिबा, आप यहाँ? रूबीना की नजरें नीची हो गईं। वो आहिस्ता से बोली, सलमा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। ये अल्फाज सलमा के लिए नाकाबिले यकीन थे। वो खामोश खड़ी रह गई, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि जो रूबीना कभी उसे हकारत से देखती थी, आज वो माफी मांग रही है। नूर भी माँ के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। आप भी भूखे बच्चों का दर्द समझ सकती हैं? नूर ने हैरानगी से पूछा। रूबीना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो जानती थी कि नूर के सवाल में वो तल्ख हकीकत छुपी थी जिसे वो खुद कबूल करने से डरती रही थी। हाँ बेटा, अब मैं समझ सकती हूँ। रूबीना की आंखों में आंसू आ गए। नूर ने एक लम्हे के लिए माँ की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ी और रूबीना का हाथ थाम लिया। अल्लाह सबको माफ करता है, तो हम क्यों नहीं? नूर ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर सलमा की सख्ती भी पिघलने लगी। बेगम साहिबा, हमने आपका कभी बुरा नहीं चाहा। हमने तो हमेशा अल्लाह से इंसाफ मांगा था और शायद यही इंसाफ था कि आपको हमारे दर्द का एहसास हो जाए। रूबीना ने नम आंखों से सर हिलाया। हाँ सलमा, तुम ठीक कहती हो। उसी रात रूबीना ने आरिफ से कहा कि मैं अब नूर और सलमा के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, सिर्फ माफी काफी नहीं। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही सोच रहा था। हम उन्हें एक छोटा सा मकान दे देते हैं ताकि वो हमेशा की बेबसी से निकल सके। रूबीना ने चौंक कर आरिफ को देखा। क्या वाकई? हाँ रूबीना, हमने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, मगर हमेशा सिर्फ अपने लिए। शायद अब वक्त आ गया है कि किसी और के लिए भी कुछ करें। रूबीना ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, और शायद इसी में असल खुशी है। अगले दिन सलमा और नूर को बाज़ाब्ता तौर पर एक छोटे मगर साफ सुथरे घर की चाबियां दी गईं। सलमा की आंखें हैरत से फैल गईं। बेगम साहिबा, ये क्या है? रूबीना ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारा अपना घर है ताकि तुम्हें कभी किसी की मोहताजी ना हो। नूर ने खुशी से माँ की तरफ देखा। अम्मी, हमारा अपना घर? सलमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। रूबीना ने नूर के सर पर हाथ रखा। दुआ करना कि अल्लाह मुझे भी माफ कर दे जैसे तुमने किया। नूर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सबको माफ कर देता है, बस हमें भी करना आना चाहिए। नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई थी। सलमा और नूर के लिए ये दिन किसी ख्वाब से कम नहीं था। सलमा ने वजू किया, जाए नमाज बिछाई और शुक्राने के नफल अदा करने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर आज उनमें शिकवा नहीं था, सिर्फ शुक्रगुजारी थी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बेटी की दुआ सुन ली। तूने मेरे सब्र का बदला दिया। तूने हमें इज्जत दी, सुकून दिया। या अल्लाह, हमें कभी नाशुक्री करने वालों में शामिल ना करना। नूर अपनी माँ के करीब बैठी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। या अल्लाह, तूने हमारे साथ इंसाफ कर दिया। अब किसी को भी भूखा ना रखना, किसी को भी बेइज्जती का सामना ना करने देना। ये वही नूर थी जिसने कभी जिद की थी कि उसे भी अच्छा खाना चाहिए, और आज वो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि दुनिया में कोई और भूखा ना रहे। दूसरी तरफ रेहान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। कई दिनों की तकलीफ और आजमाइश के बाद अब वो अपनी माँ के साथ घर में बैठा था, मगर वो पहले जैसा रेहान नहीं रहा था। वो बच्चा जो नाजो नम में पला था, अब जिंदगी की हकीकतों को समझ चुका था। रूबीना ने उसे अपने पास बिठाया और नरमी से पूछा, बेटा कैसा महसूस कर रहे हो? रेहान ने माँ की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा,
امی، ہمیں کبھی کسی غریب سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں۔ روبینہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ ریحان نے اپنی ماں کے ہاتھ تھامے۔ جب میں بھوکا تھا تو سب نے مجھے دھتکار دیا، سب نے مجھے حقارت سے دیکھا جیسے میں انسان ہی نہ ہوں، مگر میں نے سوچا اگر میں ہمیشہ امیر ہوتا تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتا۔ روبینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بھی نور کے ساتھ یہی کیا تھا، میں نے بھی اسے بھوکا رکھا اور اللہ نے مجھے سبق سکھا دیا۔ ریحان نے سر جھکا کر کہا، امی میں نور آپی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب غریبوں کے لیے کچھ کریں تاکہ کوئی بچہ میری جیسی تکلیف نہ سہنے پر مجبور ہو۔ روبینہ نے شفقت سے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ ہاں بیٹا، اب ہم ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر روبینہ نے دل میں ایک عہد کیا، آج سے وہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو وہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتی ہے۔ وقت کے ساتھ روبینہ کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ ریحان کا اغوا اور اس کی بھوک نے اسے وہ سبق سکھایا تھا جو شاید کوئی نصیحت بھی نہ سکھا سکتی۔ اب وہ پہلے جیسی مغرور اور خود غرض عورت نہیں رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرے گی۔ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ کرے گی جنہیں وہ پہلے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور بچہ نور کی طرح حسرت سے اچھے کھانے کو نہ دیکھے اور کوئی اور بچہ ریحان کی طرح بھوک سے نہ تڑپے۔ روبینہ نے رحمت دسترخوان کے نام سے ایک خیراتی ادارہ قائم کیا جہاں روزانہ غریبوں کے لیے شاندار افطاری کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ وہی روبینہ تھی جو کبھی نور کے ہاتھ سے سموسہ چھین کر اسے چور کہتی تھی، اور آج وہی روبینہ اپنے ہاتھوں سے غریب بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ رمضان کی ایک پر نور شام تھی۔ رحمت دسترخوان پر سینکڑوں غریب لوگ قطار میں بیٹھے افطار کا انتظار کر رہے تھے۔ کھجورے، سموسے، پکوڑے، پھل، بریانی، ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی۔ روبینہ ایک ایک میز پر جا کر خود کھانا تقسیم کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو کسی کو سچائی کا راستہ ملنے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ اچانک ایک نرم اور معصوم آواز اس کے کانوں میں پڑی، امی اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی۔ روبینہ نے حیرت سے پیچھے دیکھا۔ وہ نور تھی جو اپنی ماں کے ساتھ رحمت دسترخوان پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نور نے نرمی سے کہا، امی وہ دن یاد ہے جب میں نے آپ سے ضد کی تھی کہ مجھے بھی اچھا کھانا چاہیے؟ آج اللہ نے میرا خواب پورا کر دیا، لیکن صرف میرے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے جو یہاں بیٹھے ہیں۔ روبینہ نے نور کو گلے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹا، آج میں سمجھ چکی ہوں کہ اللہ سب کا رازق ہے اور غربت کوئی جرم نہیں۔ اب روبینہ صرف ایک دولت مند عورت نہیں تھی بلکہ ایک نیک دل انسان بن چکی تھی۔ وہ ہر روز غریبوں کی مدد کرتی، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی اور اپنے رویے سے ثابت کرتی کہ اصل دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ دوسروں کے لیے نرمی اور رحم ہے۔ دوسروں کے ساتھ برا مت کرو کیونکہ زندگی میں سب کچھ پلٹ سکتا ہے۔ یہی سبق تھا جو روبینہ نے سیکھا تھا اور یہی سبق وہ دوسروں کو سکھانے نکلی تھی۔